Hello students, how are you? I hope all of you are good. Students, we are doing 6th chapter of political science, judiciary. So students, you have to prepare the notes of this. After the finishing of this video, you can take the screenshot of the board. Okay. So students, let's start the chapter. Students, there are three organs of the government. Three organs: legislature, executive and judiciary. These are the three organs of the government. Legislature already we have done, executive also we have done, and now we will do the judiciary, right? Legislature is responsible to make the laws, and executive to implement the laws, and judiciary is the responsible to interpret the laws. So what is the judiciary? Judiciary is a system of courts that interprets and applies law in legal cases. Judiciary is a system of courts, Supreme Court, High Court and District Court. These are the courts, and this system of courts is known as the judiciary. Judiciary that interprets and applies law in legal cases. Legal cases में है जो laws होते हैं उनको इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है? कोर्ट करता है, जुडिशरी करती है, राइट? एंड अप्लाइज करने का काम भी है जो वो जुडिशरी ही करती है. What is judiciary? Sorry, why is judiciary important? Judiciary important क्यों है? Judiciary is important as it settles disputes and performs several other interpretative functions. The judiciary है, judiciary basically it is important. Why it is important? Because it settles the disputes and as well as it perform several other interpretative functions. और बहुत सारे हैं जो वर्णनात्मक जो functions हैं, जो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको भी है जो परफॉर्म करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है. So and some other functions are there which performed by the judiciary. These functions are the first is settle of disputes. Settle of disputes means several type of disputes related to property, deceit, fight, murder, theft, etc. Means इन सब से related जो disputes हैं उसमें है जो citizen है जो वो involve होते हैं. Means often arise between citizens and they may relate to civil and criminal matters. अब जैसे प्रॉपर्टी है या डिवोर्स मैटर है, all these are the part of the civil, and deceit, fight, murder and theft, these are the part of criminal, right? Criminal matters हैं ये. Okay, so judiciary settle disputes between government and citizen, and as well as judiciary settle the disputes between the governments of two states, and as well as judiciary settle the disputes between central government and state government, and as well as between government and citizen. Okay, so judiciary precedents means एक तरह से जुडिशरी के अंदर जो लॉ है वो एक नमूने का काम भी, एग्जाम्पल का काम भी है जो करता है. जुडिशियल प्रेसिडेंट, जुडिशियल नमूना या जुडिशियल है जो उदाहरण हम बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है? वेरी ऑफन देयर मेनी केसेस बिफोर द जुडिशरी फॉर विच देयर इज नो लॉ. कई ऐसे केसेस जुडिशरी में आ जाते हैं जिनके ऊपर कोई भी लॉ लागू नहीं होता. In that situation, the decision which was taken by the
judiciary that decision became the law for the same type of matters in the future. फ्यूचर में जब उसी तरह के जो अगर केसेस आते हैं तो उनके लिए वो डिसीजन ही है जो वो लॉ का काम करता है. दैट इज द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. थर्ड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए फेडरल स्टेट. ए फेडरल स्टेट क्या होता है? फेडरल स्टेट्स मीन्स स्टेट ऑफ यूनियंस. Just like India is a federal country and India is a state of unions, right? Already you have studied that 28 states and 9 union territories are there, and the 3 level of the government are there: central government, state government and local government. So this is the clear meaning of the word federal state. So in a federal state, just like India, the Supreme Court acts as the guardian of the Constitution. जो सुप्रीम कोर्ट है वो एज ए गार्जियन वर्क करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के रूप में है जो सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है. मीन्स इफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव मेक एनी लॉ विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग लॉ नहीं है, इन दैट सिचुएशन जुडिशरी कैन अबोलिश दैट लॉ. उस लॉ को है जो जुडिशरी खत्म कर सकती है, अबोलिश कर सकती है. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मीन्स सलाह का एक तरह से निर्णायक क्षेत्र, राइट? सो द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है वो किसी को एडवाइज करती है. किसको एडवाइज करती है? सी द एग्जीक्यूटिव कैन टेक द ओपिनियन ऑफ जुडिशरी. जो एग्जीक्यूटिव है वो किससे ओपिनियन ले सकती है? जुडिशरी से ओपिनियन ले सकती है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर होते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग है जो एग्जीक्यूटिव है जो वो जुडिशरी से ओपिनियन ले सकती है, मींस जुडिशरी से एडवाइस ले सकती है. और इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉ, और लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मींस लीगल प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग भी है जो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से है जो वो एडवाइस ले सकती है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मींस PIL. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है. सो आप इसको भी है जो नोट करें, राइट? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब PIL होता क्या है? जस्ट सी, इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड एन एक्सपेंसिव लिटिगेशन. Country just like India is not a rich country, right? So basically in such type of countries, जो majority of people हैं, they cannot afford the expensive litigation. वो जो legal process है, वो जो बहुत ज़्यादा expensive है, उसको afford नहीं कर पाते हैं. Means वो जो justice हासिल करने में जो पैसा लगता है उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं? इन सच केसेस, इन केसेस में क्या होता है? इन सच केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट. इस तरह के जो केसेस हैं उनमें पब्लिक इंटरेस्ट है जो वो निहित होता है, वो शामिल होता है. ए पर्सन कैन रेज हिज वॉइस बाय राइटिंग ए लेटर ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट इनजस्टिस. तो एक आदमी है जो वो जो अनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट है जो अपनी आवाज उठा सकता है, एक सिंपल लेटर लिखता है. एक सिंपल लेटर के जरिए है जो इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट कर सकता है. और ये लेटर ही है जो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाता है, PIL के नाम से जाना जाता है. जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो फर्स्ट टाइम अनाउंस हुई 1980s में बाय द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय जज थे कृष्णा अय्यर ने है जो
PIL को है जो लीगल प्रोसेस में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बताया था, और लीगल प्रोसेस के लिए एक तरह से PIL है जो वो मील का पत्थर साबित होती है और काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है जस्टिस हासिल करने में फॉर द पुअर्स। सो नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स, जुडिशरी ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स, मीन्स फंडामेंटल राइट्स। Students, already you have studied in second chapter about the fundamental rights, and in those fundamental rights already you have studied right to constitutional remedies. जो right to constitutional remedies है वो for the protection of the basic rights, for the protection of other fundamental rights है। So उसके अंदर है जो बहुत सारी रिट्स दी हुई हैं, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसमें रिट्स दी हुई हैं, जैसे रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन एंड मैंडामस और हैबियस कॉर्पस। ऑल दीज रिट्स आर गिवन अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द आर्टिकल 32। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में है जो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है, और उसी में ये सभी जो रिट्स हैं वो दी गई हैं, राइट। सो यू हैव टू लुक दीज रिट्स इन द सेकेंड चैप्टर अगेन। आपको सेकेंड चैप्टर में इन सभी रिट्स को है जो दोबारा स्टडी करना है। नेक्स्ट इज द हेल्पफुल इन सोशियो इकोनॉमिक चेंज। जुडिशरी इज वेरी हेल्पफुल इन सोशियो इकोनॉमिक change. Basically, judiciary works for the interest of children, women, bonded laborers, and poor, and as well as जो जुडिशरी है, जुडिशरी वर्क्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए भी है जो जुडिशरी वर्क करती है। नेक्स्ट इज टू इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। This is also the important, students. Basically in this point you will come to know what is rule of law. So judiciary is important to establish rule of law. रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए है जो जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ मीन्स सुप्रीमेसी एंड डोमिनेशन ऑफ द लॉ। supremacy or domination of the law, and in other words means rule of law means no any citizen of India above the law. Each and every citizen is equal before the law, even he is the Prime Minister of India or a worker in a factory or a peon, right? Each and everyone is equal before the eye of the law, right? सब पर है जो लॉ इक्वली है जो लागू होता है। कोई लॉ के सामने न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई राजा है न कोई रंक है, राइट? और उसकी नज़र में है जो लॉ की नज़र में हर कोई इक्वल है। इसी को है जो रूल ऑफ लॉ कहा गया है, और इसी रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। If you want to prepare the notes, so you can take the screenshot of this.